striking back, and we hit them very hard at the place and the time of our own choosing. Surprise, secrecy and speed were all attained, and Pakistan could not detect any of these attacks that went in. International diplomacy also kept in part. The counterpart of our countries spoke to the many countries, including the US. Prior to this attack, India had already briefed almost 80 plus ambassadors of various countries. We had told them loud and clear that this is what Pakistan has done, and we were bound to react. Now, immediately after the strikes were carried out, within a few minutes of that, NSA Ajit Doval spoke to Mike Rubio, the American Secretary of State, and thereafter he also spoke to Saudi Arabia, UAE and some other countries, friendly countries. We categorically told them that what we've exercised is right of self-defense. It is offensive defense, and our missions were focused, measured and non-escalatory. However, if Pakistan retaliates, India will bound to react viciously. PM Modi led it from the front, saw all the operation live. As one of the terrorists told to a woman, tell to Modi why we are not killing you. This is the best answer I think. Our Prime Minister has always led from the front. Whether it was Uri, he was sitting in the operations room till the time our last soldier returned back. When we carried out a strike in Balakot, he was again sitting in the operations room till last of the aircraft came back safe and sound. And when F-16 was shot down and Abhinandan was captured, he told Pakistan loud and clear that if you don't free him within 48 hours, we will let hell loose on you. And this time also he led from the front. He was sitting in his home monitoring the operation throughout. And that is what leadership is all about. What are the options Pakistan left on? Pakistan is bound to retaliate because they have to have safe face. But they're calling a meeting of the National Security Council of Pakistan at 10 a.m. and thereafter they're going to decide what they ought to do. I'm very certain that they will try. पर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग है और पाकिस्तान की सेना कर रही है अंधाधुंध फायरिंग। ये बड़ी खबर इस वक्त है। पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में ये गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत की खबर पीटीआई के हवाले से ये खबर इस वक्त आ रही है। 3 नागरिकों को गोली लगी, उनकी मौत हो गई है। एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हैं। रविंद्र, पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में सीमा पार से गोलीबारी की जा रही है। क्या जानकारी अभी साफ हो पाई इस पूरे मामले पर और सुबह होते होते? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार खासतौर पर जो कानाचक का इलाका है वहां पर भी फायरिंग जो है वो देखने को मिली है। एलओसी के ऊपर तो फायरिंग कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन उसकी रिटेलिएशन जो है भारतीय सेना जो है पूरी तरह से दे रही थी। वहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की तो उसकी भी रिटेलिएशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होना स्वाभाविक। वो सारा परिवार, हम लोग जाकर उनसे मिले थे, उनके मन में यही दुख था कि कल कोई और बहन विधवा न हो, कोई और बेटी विधवा न हो। निश्चित तौर से ऐसी कार्रवाई किया। मैं सेना के पराक्रम को अपने शुभकामनाएं देता हूं और भारत की सेना को सैल्यूट करता हूं। आज मॉकड्रिल और ब्लैकआउट भी लिया गया था, तो एक तरफ ये था, दूसरी तरफ इस तरह से कार्रवाई नहीं, निश्चित तौर से अपने देश के लोगों को बचाना भी इसमें वो है। अपने देश के जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना भी दायित्व है सरकार का, तो वो निश्चित तौर से इसको पूरा कराना चाहिए। और बहुत ही अपने जितने भी इस देश के लोग, खास करके जो बॉर्डर एरियाज और जहां पे जो सटा हुआ एरिया है वहां विशेष ध्यान देना चाहिए और फिर नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। पाकिस्तान कार्रवाई करता है, सरकार से क्या कार्रवाई की मांग? निश्चित तौर से अब तो जब कार्रवाई शुरू हो गई तो कार्रवाई आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान के ऊपर मजबूत कार्रवाई करनी है, तबाह कर देना। तो आप अजय राय को सुन रहे थे और रविंद्र हमारे साथ लगातार हैं। रविंद्र, देखिए, अब नेताओं की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी जरा वेरियस parts of India, including for a long time in Kashmir. In fact, I was born in Kashmir only. So we fully condemned what Pakistan is doing against India, and we fully support our Prime Minister Modi and his government for attacking Pakistan and teaching them a lesson. Thank you. Also, sir, terrorist camps, I mean, are hit an operation
But, yeah, I have just learned that India has attacked Pakistan in various bases, and we fully support terrorist camp attack in Operation Sindoor. And you fully support that? Yeah, fully support the government. And also, what would you like to say to the fellow citizens at this time where everybody should... We want all Indians, irrespective of their caste, religion and various parts of the country, to fully support the government in their actions and to stay united. Thank you, sir. Thank you. Thanks, sir. Okay, bye. Bye, sir. Sir. तो तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर ये गलती दोहराता है कि वो भारत पर रिटेलिएशन करेगा, यानी इस पूरे अटैक के बाद, इस कार्रवाई के बाद जवाबी कार्रवाई करेगा, तो इसका मुंहतोड़ और बहुत बुरा परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में एहतियात के तौर पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सीमा पर सुरक्षा के तौर पर क्या तैयारियां देखी जा रही हैं, ये इंडियन आर्मी ने I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust. But I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. तो इंडियन आर्मी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर संदेश है कि जितने हमारे हथियार हैं, जितनी हमारी तैयारियां हैं, इसके आधार पर तुमने जो दर्द दिया है हमारे भाई बहनों को, आई विल फाइंड यू, यानी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। एक सख्त स्ट्रांग मैसेज भारतीय एयरफोर्स की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को, और जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है, जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने जब युद्ध, या एक तरह से कहा जाए कि आज सुबह जब हमला किया गया था मध्य रात्रि को, उसके बाद, हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं, ये वीडियो जारी की गई है, साझा की गई है, और पाकिस्तान को यह बहुत सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किसी भी हाल में हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, चाहे तुम कहीं भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर बैठे हो। जिन्होंने हमारे भाई बहनों को दर्द दिया है, जिन्होंने हमारे अपने लोगों को पहलगाम में आतंकी हमले में मारा है, उनको हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मार कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, जो ऊपर आपको आग की गोलों की तरह धमाकों की जो तस्वीर दिखाई दे रही हैं, यह सच है। और ये पाकिस्तान के अंदर भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें हैं, जो पाकिस्तान में दहशत पैदा करती हैं। तबाही की इस वक्त तस्वीरें आतंकी ठिकानों से सामने आ रही हैं, जहां पर आतंकवादियों को पालने पोसने की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान, जहां पर अड्डे बनाए गए थे आतंकवादियों को, वो सभी ध्वस्त हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर और इन सब के अलावा जो दूसरे और आतंकी संगठन किस लेवल तक लेके जाएंगे। जैसा कि रशिया यूक्रेन में हुआ है, युद्ध स्टार्ट तो हुआ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह से हम गाजा में देखते हैं, इजराइल ने शुरू तो किया लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से किया है। हमको पाकिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं करना था, हमने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट नहीं करना था, हमने पाकिस्तान के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को करना था टारगेट जो दहशतगर्द पैदा करता है। दहशतगर्द पैदा हो रहे थे इनके ट्रेनिंग कैंप्स में, इनके सेफ हाउसेस थे पाकिस्तान के अंदर, लॉन्च पैड थे पीओके में, पीओके के टैंकर्स को भी किया गया है। और पीओ जो अंदर ट्रेनिंग कैंप्स थे मुर्ड के, जो लाहौर के बिल्कुल पास है, भावलपुर जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के प्रोविंस के बीच में पड़ता है, वहां पर हमने टारगेट किया है। अब क्यों नहीं करना चाहिए था? देखिए, हमारा देश इस टाइम पर इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर रहा है, सोशली पूरे कंट्री के अंदर सौहार्द है, हम पूरे एक यूनाइटेड लोग हैं इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। हम नहीं चाहते कि ये इतना एस्केलेट हो कि ये ऑल आउट वॉर में हो जाए और हमारे देश की तरक्की रुक जाए। और हमारा जो सपना एक डेवलप्ड कंट्री का,
बनने का है 1947 में, उसमें रुकावट आए। इसलिए ये जरूरी था कि हम उनको ये मैसेज दें, हम टेररिस्ट को पाताल लोक तक भी ढूंढेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान की आर्मी है, उनको हम अभी तक भी पाकिस्तान का मानते हैं और उनको हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट नेटवर्क को स्ट्राइक करेंगे। यही इस ऑपरेशन सिंदूर का मतलब था जो हमने अचीव किया है। धन्यवाद। तो तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनको आप सुन रहे हैं। रविंद्र भी हमारे साथ लगातार बने। रविंद्र, भारत की तरफ से ये साफ मैसेज है कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को छेड़ा नहीं है, ना ही कोई ठिकानों पर टारगेट किया है, ना ही वहां की आवाम को हमने टारगेट किया। हमारा निशाना साफ तौर पर आतंकवादियों का था, आतंकवादियों के ठिकानों को। लेकिन शहबाज शरीफ का जो बयान है या वहां के जी बिल्कुल, जैसे कि हमें ये एक्सपेक्टेड था, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबने ये डिक्लेयर किया था कि हम चुन के और खास तौर पे टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ये उसी का नतीजा है। और जैसे कि हमें पता है कि 9